Okay. So screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. Visible. Okay. Very Sounds good. visible. Okay. Good. So today we will study about the CPSR. ये कल मैंने आपको पढ़ाया है. That is the CPSR means current program status register. Current program status register. And the second name you can say in term of your 8085 or 8086, that is the flag registers. Okay, flag register. You can means this is the analogy to the flag register. So anyone can tell me what is the functioning of flag? What is the functioning of flag register? ये क्या करते हैं? Just tell me. Last time Neha answers this question. So anyone can tell me, any other student, what is the significance of flag registers? Come on. सर वो सारा आंसर एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं. Short form में नहीं, you can say the status of the output. Okay, status or the behavior of the output. Okay, output जो भी आपका प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, after that you can say status of the output. Okay, so that is the flag register. और कुछ फ्लैग रजिस्टर आप लोगों ने 8085 में नाम देखे थे, दैट इज द कैरी, जीरो, नेगेटिव और साइन रजिस्टर्स, साइन फ्लैग, दैट इज द नेम. सो हियर इन ARM you have some flags, or you can say some CPSR. Okay, the name of CPSR, that is the NZCV, that IFT. I will tell you one by one what is the meaning of that and how it will work. And this provide the mode. Okay, so first you can understand the diagram. The diagram says that if you are starting the bit 0 and it will go to the 31, means you have the 32 bits. So bit by bit we will decide ki what is the functioning from 0 to 4. It will shows the mode, which mode it is working. After that, the 28, 29, 30 and 31 decide the conditional flag. Means whatever the output, these output will decide what is the functioning of the output. Okay, so I will tell you what is the meaning of ANZ and CB, and after that IFT, other means flags. So it will show you different type of thing. Okay, so one by one we will read. Or in the last class I have also told you about the SPSR, that is the saved program status register. और मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपके पास, मैं इसी में इस डायग्राम में यहाँ समझा देता हूँ नेक्स्ट में, कि आपके पास एक प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है. ओके, अगर बीच में कोई इंटरप्ट आता है, दैट इज द इंटरप्ट, एंड interrupt will go interrupt program, and again you will come to the main program. Okay, right, like this. First you will go to the ISR, then you will execute the ISR program, then you will come to the main program again. This is your main program. So in between of that, what you will do, first you will do, you will, मैं यहाँ कर पे ये लिखा हूँ, you will do, you will put the value of CPSR value SPSR in SPSR. You will put the value of CPSR in SPSR when the interrupt comes. So interrupt come means some mode will come. So you will put the value of CPSR into SPSR. After that, here when you returning, you will put the value of SPSR to same CPSR again. सो दिस इज द फिनोमिना. ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्टैक LR वगैरह उसमें समझाया है सभी. तो यू कैन अंडरस्टैंड. वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लिख के भी दिया मैंने. व्हेन ए इंटरप्ट अकर्स, द वैल्यू ऑफ CPSR is saved into the SPSR. Before invoking the ISR, while returning back to the main program, the value of SPSR is put back into the CPSR to store the previous state of the original program. So this is the mechanism. So you can say SPSR and CPSR and SPSR is the same thing. Okay, so there is no difference, just the difference is this. Just you can put the value of CPSR to SPSR, again SPSR to CPSR. So there is no difference in the architecture and the modes and these flags. Okay, so now CPSR and SPSR clear to you, what is the means of that? Yes or no? Yes. Okay, so now I will tell you what is the means of N. N means that is the negative flag. N means negative flag. Even though it is written, but I am telling you here again. Z means zero flag. C means carry flag. And V means overflow. Overflow flag.
Okay, so one by one we can study. So you can understand, if the output is 0, then the zero flag will be 1. ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, that is the output of your processor will be 0. If this is 1, then the output is 0. If this is 0, then the output is non-zero. Okay, so z is equal to 1 means the output of the processor is 0. Second, carry flag. Carry flag means if the C is equal to 1, the means is that the system or the processor has the carry. If you are adding something and you have the carry in the output, so carry flag will be 1. If the carry flag is 0, there is no carry. Okay, so these flags are clear to you. What is the means of that? Is it okay? Just tell me, yes or no. एक बार जीरो फिर से बता दीजिए प्लीज. कौन सा जीरो? अगर देखो कुछ ऐसा प्रोग्राम आपके पास आया कि 1010 और कुछ माइनस ये 1010 हो गया. ओके, आफ्टर दैट इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया सभी आंसर, इसका क्या आ गया? 0 आ गया आंसर. तो इस टाइम पे क्या होगा? आंसर तो आपको 0 शो हो रहा होगा, बट इस टाइम पे डायरेक्टली अगर 0 फ्लैग 1 हो जाएगा. जो ये बिट है, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपकी एन में या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि ये बिट है. बिट आपकी क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. तो 1 और 0 में से कोई एक वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे अगर 1 मिल गया, इसका मतलब डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटपुट ऑफ माय प्रोसेसर विल बी 0. अगर 0 फ्लैग मेरा 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है प्रोसेसर का, कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन भेजा है उसका आउटपुट आपका 0 है. ठीक है, अगर C इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम में कैरी प्रेजेंट है. जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें कैरी प्रेजेंट है. इज इट ओके? Now is it okay or not? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Okay, now same, this n is the negative flag. Negative flag you can understand in the 8085, that is a sign flag. This is a sign flag. वहां पे हम लोग साइन फ्लैग बोलते थे, यहाँ पे केवल नेगेटिव फ्लैग बोल रहे हैं. इसका मतलब अभी बताता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ दैट इज द ओवरफ्लो फ्लैग. ओवरफ्लो आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज द वी इज ओवरफ्लो. ओवरफ्लो कब होगा? एक्चुअली दिस ARM प्रोसेसर इज 32, but I am taking the example of 16 bit. Okay, मैं 16 bit का एक example लेता हूँ. That is a 16 bit example. If you are taking the range for the 16 bit will be, that is equal to, if I am right, you can check this also, minus 80 H2 plus 7 FH. This is for 8 bit. I think this is not for 16 bit, this is for 8 bit. I am taking the example of 8 bit. So this is the range. If the value of output is in between of this range, then the system will not overflow, otherwise it will overflow. So you can understand one thing. Now I am taking one example here. So if I just want to add plus 40 and 42, if you will add these numbers plus 40 and plus 42, the answer is plus 82. Is it okay? ये normal है. अगर इसको मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? बाइनरी में यहाँ पे लिखता हूँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 0 0. आई एम चेंजिंग द बाइनरी एंड 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 0 0 0. सो 8 बिट इज हियर. 4 को फिर से क्या लिख सकता हूँ? 1 0 0 0. एंड फॉर 2 दिस इज 0 0 1 0. Okay, this is okay. I am converting these number in the binary and I am adding this. So 0 1 0 0 0 0, here 0, here 1. Now you can see here one thing. The answer is this. That will be plus 82. But MSB will tell you the sign. MSB will tell you the sign. So the sign is negative here. So your answer will be wrong. So this is out of this range. That's why what is happening? The output is coming in. Your sign is coming is the negative. 1 means negative and 0 means positive. 0 means positive. So sometimes when you will do some exercise out of this range, so that is the problem of the sign. Okay, if this type of condition will occur, then the V will be 1. If the system has the overflow out of the range, then we will means this bit will be V is equal to 1. Otherwise it will be 0. Then your process is right and you are getting the right answers.
Okay, so this part is okay. What is the means of overflow? Means if you are in the range, then you will put the value 0 here, means this flag will be 0. Otherwise, when this flag will be 1, the system has the overflow in the system or the processor. Is it clear? This part is clear, beta? Yes. Hello. Okay. Yes. Same V का full same form क्या है? story. हाँ बेटा. तो V का फुल फॉर्म क्या बताया था आपने? V overflow. V means overflow flag. ये Okay, लिखा हुआ है. हाँ, ओवरफ्लो है, ये लिखे भी हुए हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट. अगर नोट नहीं कर पाओगे, दैट इज अ वी मीन्स ओवरफ्लो. ओके, सो दैट इज रिटन हियर, सो डोंट वरी फॉर दैट. ओके, so now last n is the negative flag. Okay, so what is happening when the system has the overflow? One thing, remember this part: when the system has overflow, then what will happen? The last bit will be inverted. The last bit will be inverted and you will get the 0. If you are getting 1 here, the n will be 0. If you are getting overflow here, then you will get the 0 here. Okay, otherwise what will happen? अगर रेंज में है, अगर रेंज में आ रहा है, तो इट विल प्रोवाइड 0. ओके, इफ द साइन इज नॉर्मल, क्या होगा कि अगर नेगेटिव साइन मिल रहा है, देन इट विल प्रोवाइड द 1. Okay, so negative means what is happening here? Negative means it is providing the sign if the 1 is coming at the this end and the system is not overflow, then you will write the 1. If the system is not overflow and you are getting the negative sign after the execution, you will write the 1. If you are getting the 1 overflow, then it will be revert, and you will get the 0. So remember this part, it will be the if you are getting the overflow, then it will negative flag will be 0 always. Okay, so you will remember this part. If v is equal to 1, then you will get the n is equal to 0 always. Otherwise, if n is equal to 1, means in this condition what is happening, n is equal to 1, always v is equal to 0. Okay, so in this condition what will happen? You have the negative value in the answer is the negative. Okay, so always you are getting the right answer even though system has the overflow or not overflow. So this is the advantage. इसी वजह से हमने इसको साइन नाम नहीं दिया, साइन फ्लैग इसमें नाम नहीं दिया, इसमें हम लोगों ने नाम दिया है, दैट इज द नेगेटिव फ्लैग. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 8085 और 8086 एंड ARM. वहां पे इसका नाम जो है नेगेटिव फ्लैग का साइन है. वहां पे ये केवल साइन प्रोवाइड करता है कि ये आपका प्लस आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है. इसमें हमने नेगेटिव ही नाम दिया है. तो ये डिपेंड करता है ओवरफ्लो पे. अगर ओवरफ्लो हमारा 1 होता है तो ऑलवेज यू आर गेटिंग द n इज इक्वल टू 0. अगर ओवरफ्लो हमारा नहीं है, सिस्टम में ओवरफ्लो नहीं है, देन वी विल चेक कि हमारा अगर पॉजिटिव है तो 0 रखेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो 1 रखेंगे. इज इट ओके? ये समझ आ गया है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है साइन में, साइन फ्लैग और नेगेटिव फ्लैग में. इज इट ओके टू यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो मैंने 4 आपको ये समझा दिए. इन चारों को हम लोग बोलते हैं दीज 4 टाइप ऑफ फ्लैग्स वी आर सेइंग दैट इज द कंडीशन फ्लैग. Okay, so special we are saying because this is depend on the different type of conditions, so we can directly say that is the condition flag. Okay, instead of this we have 3 types of flag also. Okay, here you can see I, F and T. So one by one we will see what is the means of I, what is the means of F and what is the means of T. So already you know the name, this is IRQ. What is the full form of IRQ? Anyone can tell me? जल्दी बताओ, भूल जाते हो आप लोग. कोई बताओ IRQ. कल तो मैंने इतना नाम लिया IRQ FIQ का, बार बार यही नाम ले रहा था. तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ IRQ एंड FIQ. कोई ध्यान नहीं दे रहा है. इसका मतलब IRQ मीन्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट. ओके, IRQ मीन्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट. Okay, and FIQ means fast interrupt request. Okay, so now I just want to sum if the interrupts is coming. Okay, in the interrupts in coming in the system, so we can say, now I am telling you one word also, that is these interrupts are maskable. Maskable means
Maskable means you can disable these interrupts. Okay, you can disable these interrupts means what? If I will put I is equal to 1 and f is equal to 1, then I am making these disable. Remember this part. If I is equal to 1, then I am disable the interrupt IRQ. Okay, if f is equal to 1, then I am disable. So that means I am masking. I am masking means disable. Okay, so disable again. So I am disable. I am disable this fast interrupt request. If you will read some other processors, sometimes you will see here, अगर i की वैल्यू 0 होती है तो हम डिसेबल कर रहे होते हैं, बट दीज आर मास्केबल. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ i इज इक्वल टू 1 देन आई विल डिसेबल. ओके, अदर प्रोसेसर्स में अलग कहानी है, बट ARM में क्या है? इन ARM for disabling the IRQ you have to make this 1, and for disabling the FIQ you have to make this 1 again. Okay, so if these value will be 1, then you can disable the IRQ interrupt and the FIQ interrupt. Otherwise, if I is equal to 0, this interrupt will work, and f is equal to this is equal to 0, then FIQ will work. So this is okay. What is the means of maskable thing? Maskable means disable. And how can you disable the thing? You will make that flag 1. The means of that flag is equal to 1 means that you are masking that flag. That interrupt means you are disabling that interrupt. So both of these things clear? Is it okay? Yes. Hello. Okay. Now this is the most important thing. This is T. Okay, so you can see this is the thumb flag बोल देते हैं. That is the thumb flag. यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी है for the thumb flag. Okay, so I am removing this part. Now I am coming to the thumb flag. Okay, so I have told you the story about the that you have to use the three type of data here. That is the 8-bit data, 16-bit data, and the 32-bit data in the ARM processor. Okay, most of the time we are using the 32-bit data. Most of the time I am saying, but sometimes we can use the 8-bit data also and 16-bit data. So I am also to tell you the name about these. 8-bit data means byte, 32-bit data means address, 16-bit data means half address. So you can use the byte and half address also in the ARM process. In the ARM processors, you can use. Most of the time you are using the 32-bit data. So what is happening when T is equal to 1? When T is equal to 1, the means is that you are in the means enabling the thumb flag. Okay, so meaning of that, you are using the half word for that. You are using the half word means instead of 32-bit data, you are using only the 16-bit data. 16-bit data here. Okay, when T is equal to 1, when T is equal to 1 means you are using the half word data. So you are using only the 16-bit data only, and that's why sometimes the name of our ARM processor, this is a special type of ARM processor. You can see I am telling you some name or some variant of ARM, ARM A, ARM R and ARM M. Cortex भी बोलते, Cortex A, Cortex R, Cortex M. Okay, these are the name of some variant of the ARM. So what is happening in this A? You are using the 32-bit. Again in the R you are using the 32-bit, but in the M type of processors, ARM Cortex M, in this type of processors you are using the 16-bit. So remember this thing. When T for this type of processors, ARM Cortex M, you are enabling the T is equal to 1. T is equal to 1. So ARM Cortex M works in the thumbnail mode. Thumbnail और thumb flag, thumbnail भी बोल सकते हो.
T is equal to thumb flag or thumbnail flag. Okay, so T is equal to 1 means you are using the 16-bit data. Or which type of processor is this? ARM Cortex M. ओके, ARM Cortex M, स्पेशल टाइप ऑफ थिंग. अब देखो ये वाला यूज कहाँ होता है. अगर इसको यूज करें, कॉर्टेक्स ए वाला जो यूज होता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग, हमारे रेस्पॉन्स बहुत अच्छे होते हैं और प्रोसेसिंग भी अच्छी होती है. 32 बिट डेटा यूज कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग बहुत अच्छा हो रहा होता है. मोस्टली टाइम ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग यूज कर रहे होते हैं. और यू कैन से द सुपर कंप्यूटर्स, और जो अभी के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें आप लोग कॉर्टेक्स ए यूज कर रहे हो. मिडिल टाइप के कंप्यूटर्स जहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्स ठीक ठाक हो, जैसे पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर आ रहे हैं, उनमें हम लोग कॉर्टेक्स आर को यूज कर लेते हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ एआरएम, ये वाले एआरएम की हमें जरूरत होती है, दैट यू कैन से दैट इज द रिमोट कंट्रोल. यू कैन से इफ यू हैव द रिमोट कंट्रोल, सो वहां पे हमें क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, हमें पर्टिकुलर एक बटन से एक काम होना है. ओके, सो यू कैन सी इन द रिमोट कंट्रोल और दिस टाइप ऑफ डिवाइस की, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, दिस टाइप ऑफ डिवाइस हैज द ARM Cortex M. यहाँ फायदा क्या होता है? अच्छा, 16 बिट मैंने यूज कर लिया, व्हाट इज द एडवांटेज? अगर मैं 32 बिट कर रहा हूँ, अच्छा पाइपलाइनिंग हो रहा था, अच्छा सब कुछ था, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? सो यू कैन अंडरस्टैंड if I will take the example, मैं यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ. Okay, if I will take the example, I have the memory of 1 KB. Okay, I have the memory of 1 KB. 1 KB means how many bytes? Just tell me, how many bytes? Come on. 1024. Very good, 1024 byte. Okay, now I am saying I am using the 16-bit data, and I am saying I am using the 32-bit data. Okay, so you just tell me how many instruction can be saved. अगर एक इंस्ट्रक्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ या डेटा के लिए यूज कर रहा हूँ 16 बिट और यहाँ पे 32 बिट, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ. सो यू कैन सी हियर यू कैन यूज द 512 ओके इंस्ट्रक्शन. हियर यू विल यूज द 256 ओनली. सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम लोग बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी कम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ज्यादा स्टोर हो गया क्योंकि बिट हमारा डाउन हो गया है. तो इससे हमारा क्या फायदा होता है? इससे हमारा फायदा ये होता है दैट द कोड डेंसिटी, एक वर्ड याद रखना, दैट इज द कोड डेंसिटी ऑफ द प्रोसेसर. कोड डेंसिटी ऑफ द प्रोसेसर विल इंक्रीज. मीन्स आप कम जगह पर ज्यादा इंफॉर्मेशन को रख सकते हो. ओके, सो कोड डेंसिटी विल इंक्रीज इवन दो द परफॉर्मेंस विल डाउन. परफॉर्मेंस विल डाउन बिकॉज यहाँ पे 16 बिट यूज कर रहा हूँ, पाइपलाइनिंग उतना अच्छा यूज नहीं होगा, देन परफॉर्मेंस विल बी डाउन, बट code density will be increased. So this type of thing, this type of example I am taking remote control and other thing, there's no need of high performance. Okay, so we can say we can take some advantage of the code density. We can store more data instead of taking the performance. Performance हमें जरूरत है अगर you are using the computers and other things, so performance is needed there. But in that type of devices there is no need of so much high performance, so we increase the size of this. So you can understand now, if I am taking t is equal to 1, that means you are in the thumbnail, you are enabling the thumbnail flag, and you are in the thumbnail processor. So thumbnail processor, you can see that is the ARM Cortex M, where you can use the 16 bit, and this type of bit you can use the remote controller or small devices where there is no need of high performance. Okay, so this is the story of the flag. So ये समझ में आ गया what is the means of T, और ये किस तरीके कहाँ enable कर सकते हो, इसका मतलब क्या है और कहाँ यूज होता है. Is it okay? This thing is okay to you? Yes. Hello. Okay, everything is okay for the T? I think सर अगर okay. T 0 होगा सर तो ARM हाँ. R वाला यूज हाँ होगा. हाँ, T0 means always you are using the 32 bit. Okay, T0 means you are using the 32 bits. T1 means you are enabling the thumbnail mode, and the thumbnail mode means you are using the 16 bit data. Is it okay? So this thing is clear, I think. Okay, now these 0 to 4 bit use for choosing the mode, और mode आप कल पढ़ चुके हो, that is the if the mode sequence, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, this is a 0 1 2 3 4. Okay, these 5 bits are using. If you are using this type of sequence, then you are in user mode. If I am using this type of
this type of bits, you are in FIQ mode, you are in this type of mode, you are in IRQ mode, or these are the similar thing. Means if the sequence of the bits are like this, you are in different mode, and the used for, ये भी मैंने कल बताया था कि नॉर्मल प्रोसेसर के लिए प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट्स के लिए, लो प्रायोरिटी IR की नॉर्मल प्रायोरिटी के लिए यूज होता है। ये डिफॉल्ट रीसेट मोड है। सुपरवाइज मोड में आप चले जाते हो। अबॉर्ट आपको अगर सिस्टम फेल होता है, मेमोरी एक्सेस फेल होता है, देन यू आर इन अबॉर्ट मोड। अनडिफाइंड अगर इंस्ट्रक्शन कुछ आ जाता है, देन यू आर अनडिफाइंड मोड। एंड सिस्टम एंड यूजर आप इन्वोक कर लेते हो, अगर प्रोग्राम सिस्टम में चला जाता है, सिस्टम को यूज कर रहा होता है, देन यू आर इन सिस्टम मोड। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स। एंड from 0 to 5, 0 to 5, these bits will decide in which mode you are working, and these bits decide in which type of flag you are using and what is the means of that. So I think this part is clear to you, what is the means of flag and how can you define the mode and flags. So this thing is clear to you? Okay, just tell me yes or no. So I will ask you one question. हाँ बेटा बताओ, क्वेश्चन है कोई? I think no. Okay, now just tell me, I am in this type of thing, 0 0 0 and this is 1. Okay, this is your 1, this is your 0, this is your 1, this is your 1, this is your 0, this is your 0, this is sorry, this is your 0 and this is your 0. Okay, so what is the means of that? ओके, लाइक दिस, यहाँ पे कुछ बिट आ जाएंगी, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्टेटस हो रहे हैं, वो ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। जो स्टेटस ऑफ एक्सटेंशन वगैरह जो वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। बाकी इनको देख के पहले हम लोग क्या समझ सकते हैं, जस्ट गिव मी द आंसर। इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू विल हैंडल, सो इन विच मोड वी आर डूइंग द वर्क? 1 0 0 0 1, स्टार्टिंग की 5 बिट्स को देखकर आप मोड का अंदाजा लगा सकते हो। सो इन विच मोड वी आर वर्किंग, सो यू कैन चेक हियर, अभी याद नहीं होंगे। So we are working in the 10001. We are working in the fast interrupt request mode. Okay, so we are working in the fast FIQ mode. Okay, यहाँ पे मैंने okay, so you are in FIQ mode. So FIQ को देखो मैंने डिसेबल किया है, सॉरी इनेबल किया है। 0 1 के F को मैंने 0 बनाया है, मीन्स यू आर इन द FIQ मोड, दैट्स वाई F विल बी 0. ओके, तो ये मैंने डिसेबल नहीं किया। आई मोड इज डिसेबल, आई मीन्स I1 मीन्स आई मोड इज डिसेबल, IRQ मोड इज डिसेबल दिस टाइम। एंड हाउ मेनी बिट्स वी आर यूजिंग फॉर दिस? सो एनीवन कैन टेल मी how many data bits we are using for this? If t is equal to 1, then sorry मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, these are the instruction. Okay, these are the instruction bit. Okay, not data, that is the instruction. Okay, so t is equal to 1 means we are working in the 16 bit instruction mode. Okay, not 32 bit instruction mode. T is equal to 1 means we are working in the thumbnail mode, and so we are using the 16 bit instruction only. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Okay, Yes. now just tell me what is the means of this. You are in overflow mode, v is equal to 1 means you are in overflow mode, and n is equal to 0 means the number is means non-negative. Yes. Okay, that number is non-negative. 0 z is equal to 0 means you have the answer that is not 0. Okay, that is non-zero answer you have, and in the system and the output you have the non-zero carry, means you don't have the carry. Okay, so answer is the answer is not carry. So by seeing this flags number and this mode, you can means say this is the mode and this is the situation of the output. So by saying on the flag, by seeing by the flag, you can say that is the situation and that the output should be look like this. Okay, so you can understand by seeing the flag only. So you can understand what is the means of CPSR and SPSR. SPSR सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है, केवल थोड़ा सा नाम चेंज है क्योंकि एक दूसरी की जगह पे सेव होते हैं। ये आपका केवल जो आपको मैं कहानी बता चुका हूँ वही है कि SPSR CPSR SPSR में सेव होता है, फिर लास्ट में द्वारा मेन प्रोग्राम के लिए SPSR फिर CPSR में सेव हो जाता है। ओके, सो आई थिंक फ्लैग्स आर क्लियर टू यू कि what is the means of flag, that ARM flags. Is it clear? Just tell me.
Yes, sir. ओके चलो, तो ये समझ में आ गया है। और बाकी थोड़ा सा ये थियोरेटिकल आपको मैंने लिख के भी दिया है, यू कैन स्टडी दिस पार्ट। सो सेम कहानी वो लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई है, तो देयर इज नो चेंज। तो मैं स्पेशली उसके लिए कुछ बताऊं, सो सेम स्टोरी इज देयर। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द आर्किटेक्चर, ARM प्रोसेसर आर्किटेक्चर। Okay, so we will study about the architecture. So till now you have studied about the registers. Okay, second I am just telling about the flag or CPSR. Okay, so or introduction part you have covered. So most of the thing is covered here. So एक दो चीजें और रह गई हैं आर्किटेक्चर के बाद में, एड्रेसिंग मोड है, ऑपरेटिंग मोड तो बता दिए। ऑपरेटिंग मोड भी आप समझ ही गए कि विच टाइप 7 ऑपरेटिंग मोड क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं। देन एड्रेसिंग मोड है, एक दो चीजें हैं वो मैं कवर करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बट नाउ वी विल गो फॉर द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर देख के आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी मैंने आपसे बात किया कि इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट द आर्किटेक्चर, so there are three things. What are the three things? Anyone can tell me in the architecture? When I discuss the architecture of 8085 and 8086. So main three things are any architecture of Pentium 1, 2, 3, 4, what I have called to you. So every time you have to decide three things. That is the fetch, decode, and execution. Every processor means for ARM also, I'm not saying this is so any type of processor, if you will decide these three things, fetching, decoding and the execution, then easily you can see कि what is the structure, और कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है इसमें, कैसा दिख रहा है ये अजीब सा, वॉट एवर, बट most of the every time you can see, every time there are three things here, that is the fetching, decoding and execution all the time. So one by one we will see where the fetching is present, where the decoding is present, where the execution is present. If you will decide these three things, then the architecture will be easier for you. Okay, so first thing I will decide that, okay, fetching के लिए हमें क्या करना होता है? For the fetching we will decide the एड्रेस, और एड्रेस हमें कहां से पता चल जाता है? मेमोरी में। एक तो ये समझ लो अभी, वन थिंग आई जस्ट टेल यू, जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है इसके बाहर, इस आर्किटेक्चर के बाहर, दैट इज द मेमोरी पार्ट। ओके, ये बाहर पूरी मेमोरी इसकी रखी हुई है, क्योंकि मेमोरी को अलग से नहीं बनाया गया। ओके, सो फर्स्ट यू आर फैचिंग, ओके, एंड फैच तो कर लेते हो, फैच कर रहे हो मेमोरी से। उसमें भी आप लोग क्या करते हो, अगर मुझे एक प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे हो तो आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूशन का आपको क्या चाहिए होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए होता है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इस पोजीशन पे खड़े हो आप, ठीक है, आपको क्या चाहिए? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। और ये एड्रेस आपको कौन बताता है? जस्ट टेल मी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हु विल डिसाइड? प्रोग्राम काउंटर। वेरी गुड, प्रोग्राम काउंटर, वेरी गुड। दीज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन बताएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस में डाल देता हूँ यहाँ पे, वो बताएगा आपको प्रोग्राम काउंटर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग यही ढूंढने की कोशिश करो, वेयर इज द पीसी आपका कहाँ पे है? नाउ एनीवन कैन टेल मी वेयर इज द पीसी? आपको मैंने बताया कि रजिस्टर जब मैंने पढ़ाया, तो रजिस्टर के टाइम पे, इसीलिए मैं रजिस्टर आपको पहले पढ़ाया कि R15 रजिस्टर विल यूज एज ए पीसी इन द ARM। ओके, तो वो यहाँ प्रेजेंट है। ओके, रजिस्टर फाइल में प्रेजेंट है R15। ओके, दैट R15 विल वर्क लाइक ए पीसी। तो इसके पास पीसी है ये, इसके पास आपका प्रेजेंट है नेक्स्ट बिट का, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। So it will decide the next instruction address and it will be connected to the address bus. ये आपका एड्रेस बस से कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो ये फैचिंग का काम कर रहा है कि एड्रेस, ये क्या किया, नेक्स्ट मेमोरी, ये मेमोरी से कनेक्ट हो गया। एड्रेस बस कहाँ कनेक्टेड है? मेमोरी से। तो मेमोरी से ये क्या करेगा? फैच कर लेगा इंस्ट्रक्शन को कि व्हाट इंस्ट्रक्शन वी विल यूज फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो फैचिंग इज अकरिंग हियर, fetching is occurring here, and second, you can understand, second fetching is doing here also. Here is the memory, यहाँ पे memory, ये white part आपका memory, फिर से बोल देता हूँ, ये memory है, मतलब white part पूरा memory है, यहाँ पे memory है। Okay, so what is doing?
व्हाट द डेटा बस डूइंग, ये दिस इज द डेटा बस, मैं यहाँ पे डेटा बस कर देता हूँ, दिस इज द डेटा बस. डेटा बस मीन्स डेटा बस कलेक्ट द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन. डेटा बस हमेशा क्या करता है, डेटा बस कलेक्ट द, और यू कैन से डेटा बस fetch the data as well as the instruction. Both thing are connected to the database. database के थ्रू ही आप कलेक्ट कर सकते हो, फैच कर सकते हो डेटा को और इंस्ट्रक्शन को. तो फर्स्ट आई एम टेलिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन. मैंने क्या किया, पीसी के पास हमेशा इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी से कनेक्टेड है, फैच होता रहेगा. यहाँ मेमोरी से मैंने इंस्ट्रक्शन को फैच किया और ये आपको दे दिया इंस्ट्रक्शन डिकोडर में. इंस्ट्रक्शन को फैच किया मेमोरी से एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर को दे दिया. ओके, तो डेटा बस के थ्रू, ये डेटा बस के थ्रू आया, ये भी आपका डेटा बस है. तो डेटा बस के थ्रू आपका क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन आया और इंस्ट्रक्शन कहाँ चला गया, डिकोडर के पास. तो मैं फैचिंग की कहानी यहाँ तक है कि बस केवल फैच कर लो, इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया और डेटा बस के पास में आ गया हूँ. नाउ डेटा बस के थ्रू मैं डिकोडर में आ गया हूँ. अब डिकोडर के पास में बैठ गया और डिकोडर का काम कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ डिकोडर. तो पीसी एंड मेमोरी से ये फैचिंग का काम करता है, ये केवल इंस्ट्रक्शन को बढ़ाता जाएगा, वहां से फैच होता जाएगा. सेकंड आपका डिकोडर, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ डिकोडर, एनीवन कैन टेल मी, जस्ट जल्दी से बताओ. व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिकोडर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिकोडर. डिकोडर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गया, ये इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गया, मान लो ऐड का ऑप कोड है ये, ठीक है. अब ये क्या करेगा, डिकोडर क्या करता है यार प्लीज, इसको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. वेरी गुड, इट विल कन्वर्ट इट टू द मशीन लैंग्वेज. ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यू कैन से. सो इट विल कन्वर्ट टू द मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग करेगा कि यार इसका मतलब क्या है कि 0001 आपके पास तो ऑपकोड्स आ रहे हैं, ऑपकोड आए, अब इस ऑपकोड का मतलब क्या है, इसको डिकोड करेगा. इस डिकोडर ने डिकोड कर लिया और ये डिकोडर कहाँ भेज देगा, इसको कंट्रोल यूनिट में. यहाँ पे एक और बना सकते हो, दैट इज द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं. तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सिग्नल बना देता हूँ, कंट्रोल सिग्नल्स. तो प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, फैच कर रहे हो. इंस्ट्रक्शन को फैच किया, इंस्ट्रक्शन को फैच करके कहाँ भेज दिया, डिकोडर के पास. डिकोडर के पास आ गए तो आपने पहचान लिया कि मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वॉट एवर, उसको डिकोड कर लिया है. जो भी कहानी है, जो भी ऑपकोड आया, अकॉर्डिंग टू ऑपकोड यू हैव फाइंड द मशीन लैंग्वेज कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस मीन्स ऑपकोड. जो ऑपकोड मिल गया उसको भेज दिया मैंने कंट्रोल यूनिट में. कंट्रोल यूनिट में जब मेरे पास आ गया, देन कंट्रोल सिग्नल्स विल एक्टिवेट. और ये कंट्रोल सिग्नल क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल सभी से कनेक्टेड रहते हैं. मीन्स दिस इज द ब्रेन, इट इज लाइक ए ब्रेन. ये मैंने पहले भी समझाया है आपको 8085 में. इट इज लाइक ए कंट्रोल सिग्नल्स लाइक ए ब्रेन. वो अगर आपको हैंड मूवमेंट करना है, देन इट विल सेंड द मीन्स सिग्नल दैट हैंड विल बी अप एंड डाउन, मसल्स फिर काम करना बंद कर रही है. उसी की तरह ये सभी से कनेक्टेड होते हैं. कंट्रोल सिग्नल्स कनेक्ट टू एवरीथिंग. देन ये आपको एएलयू को बताएगा कि आपके को ऐड करना है और 2 नंबर आपके पास आने वाले हैं और वो ऐड होंगे इस तरीके से, वॉट एवर. अभी आपको इतना समझना है कि आपके पास इंस्ट्रक्शन आया, डिकोड हुआ, कंट्रोल सिग्नल के पास, कंट्रोल यूनिट में आ गया. कंट्रोल यूनिट से जो सिग्नल एक्टिवेट होंगे वो आपके डिफरेंट जो भी आपके पार्ट यहाँ पे एएलयू, एमईसी, बैरल शिफ्टर, वॉट एवर इट इज रिटन, इन सबको एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिग्नल. What is doing, what is the work of that control signal. So यहाँ तक कहानी समझ आ गई कि इस वाले पार्ट की कहानी समझ आ गई. ये डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया. दिस इज द पार्ट ऑफ डिकोडिंग. इज इट ओके, ठीक है यहाँ तक बेटा, जल्दी से बताओ. ओके, अब यहीं पे मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने आपसे कहा मेमोरी से मैं डेटा को भी कलेक्ट करता हूँ. तो देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि आपका ARM डेटा कहाँ पे लेके जाएगा, हमेशा ये मेमोरी में वर्क करेगा नहीं. तो मेमोरी का तो कोई मतलब नहीं रहा. आपको पूरा डेटा कहाँ लेके आना है, रजिस्टर्स में लेके आना है. तो आप मेमोरी में केवल क्या करते हो, मेमोरी में आप 2 ही काम करते हो. मेमोरी से या तो लोड करोगे, मींस लोड एंड स्टोर का काम करते हो आप ARM प्रोसेसर में. तो लोड का मतलब है कि मेमोरी से आपने क्या किया, डेटा को, अभी ये भूल जाओ ये क्या लिखा है, साइन एक्सटेंडेड, ये भूल जाओ. डेटा को डायरेक्टली आप रजिस्टर में लेके आ गए, यहाँ से ये आप रजिस्टर में ले आए.
लास्ट में आप क्या करोगे, अगर जब आपका आउटपुट पूरा यहाँ पे जनरेट हो जाता है, किसी रजिस्टर में सेव होगा आउटपुट, मान लो R1, R1, R2, R0 किसी में भी आपका सेव है, उसको वापस से आप मेमोरी में स्टोर कर दोगे, तो वो स्टोरेज का काम हो जाता है, दैट इज द स्टोर। तो मीन्स लोड एंड स्टोर, you will work two thing only, the memory with the data, that you will load the data from the memory to the register, and after the execution of the processor the output will be again stored to the memory. This is the functioning of this part. So it is clear, this part is clear। अभी तक इसका मतलब बताऊंगा साइन एक्सटेंडेड का कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट। ये मतलब समझ आ गया? अभी एक एक चीज बता रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए, बताओ जल्दी से बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। यस सर आ गया। ओके गुड। तो देखो डेटा मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है कि देखो मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप का डेटा आपका आ सकता है, कि 8 बिट भी आ सकता है, 16 बिट आ सकता है, और आपका 32 बिट आता है। अगर 32 बिट आया तो कोई मतलब नहीं है साइन एक्सटेंडेड का, तो तुम पूरा डेटा मिल गया। अगर 16 बिट डेटा आता है, 16 बिट डेटा आ गया तो मेरे पास अभी 16 जगह तो खाली है। अगर इस तरीके से ये 16 है, ये भी 16 है, तो 16 बिट डेटा तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये 16 बिट अभी मेरे पास खाली है। तो यहाँ पे या तो मैं इसको 0 बनाऊंगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है तो मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर है मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव नंबर को इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करूंगा, जो भी नंबर आया, आफ्टर दैट इस 0 को 1 बनाऊंगा, तो इसके टूज कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइन एक्सटेंडेड लिख दिया कि अगर मेरे पास 8 बिट डेटा आया, 16 बिट डेटा आया, देन यू हैव टू ओवरलैप सम डिजिट्स। ओके, 16 बिट को ओवरलैप करोगे, यहाँ पे 24 बिट्स को ओवरलैप करोगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि साइन एक्सटेंडेड। और वो आपको क्या शो करेगा, केवल शाइन को शो कर रहा होगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ दैट वैल्यू, क्योंकि मुझे 32 बिट पूरा भरना है, क्योंकि इट विल ARM विल वर्क फॉर द 32 बिट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। इज इट ओके? दिस पार्ट इज ओके कि मैं यहाँ पे साइन एक्सटेंडेड को क्यों लगा रहा हूँ, कि ये केवल साइन बता देगा जब आपका डेटा 16 और 8 बिट आ रहा होगा। इज इट ओके? यस और नो? यस सर। ओके, तो चलो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो ये पार्ट पूरा क्लियर है आपको, यहाँ तक रजिस्टर तक आपको क्लियर है। अब जो पार्ट आपका बचा हुआ है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट। ये आपका एग्जीक्यूशन करेगा, और वो एग्जीक्यूशन कैसे करता है जल्दी से मैं बता देता हूँ, आपकी ये समझ में जल्दी आ जाएगा। केवल 1-2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताने वाली, मैं इसको रब कर देता हूँ, या फिर अभी टाइम पूरा हो जाएगा अगर, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज कर दूंगा एग्जीक्यूशन को। चलो मैं पिछला वाला रब कर दिया हूँ थोड़ा सा। देखो एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि देखो ALU की आपको पता है, ALU में क्या होना चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए। मान लो x आया, b आया, और मुझे ऐड करना है, ऐप कोड ने बता दिया कि ऐड करना है, तो ये आंसर कर देगा a प्लस b, ठीक है। ALU इस तरीके से वर्क करता है। तो देखो ALU कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, एक ALU की वैल्यू आ रही है रजिस्टर से यहाँ पे, दूसरी अभी बैरल शिफ्टर भूल जाओ, यहाँ पे बैरल शिफ्टर का मतलब क्या है, दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ से, ठीक है। ALU क्या करेगा, इसको इन दोनों को ऐड करेगा और ये आपका पहुंचा देगा इस वाले रजिस्टर में। बस यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन दिस टाइप ऑफ ARM प्रोसेसर्स में क्या है, ALU विल वर्क एज द ट्राइडेक। ये वर्ड है ट्राइडेक, एक जस्ट वेट, हाँ, ट्राइडेक ऑपरेशन। इट विल सपोर्ट द ट्राइडेक ऑपरेशन। और ट्राइडेक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है अभी मैं समझा देता हूँ। इट विल सपोर्ट, देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐड 0 R0 R1 R2, ट्राइडेक प्रोसेसर का मतलब, ट्राइडेक ऑपरेशन का मतलब क्या है, नॉर्मल में अगर इस तरीके से लिखा हो ऐड R0 R1 R2, तो इसका मतलब आप लोग ये समझेंगे दैट R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R0 R1 प्लस R2। ओके, बट दिस इज नॉट द मीन्स ऑफ ट्राइडेक ऑपरेशन। ट्राइडेक ऑपरेशन में इसका मतलब क्या होता है, दैट R0 में स्टोर कर दो वैल्यू R1 प्लस R2 की, ओके। R1 plus R2 will be added and the output of the R1 plus R2 will be stored in the R0। वही कहानी है, देखो 2 इनपुट मिले यहाँ से, ठीक है, और जो आउटपुट आया वो आपका एक तीसरे रजिस्टर में जाके स्टोर हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर द ARM प्रोसेसर विल वर्क विद द ट्राइडेक ऑपरेशन। ट्राइडेक ऑपरेशन में क्या होगा कि 2 वैल्यू कहीं से आ रही हैं, वो एक डिफरेंट टाइप के रजिस्टर में आपकी सेव होती है। ओके, सो रिमेंबर, यू विल रिमेंबर दिस पार्ट
कि ये क्यों हो रहा है, वो सॉरी, ये ट्राइडेक ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्राइडेक ऑपरेशन, इज इट ओके? हेलो सर एक बार ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ट्राइडेक ऑपरेशन का मतलब है कि यू विल यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर to save the or store the output. Means if I am using this type of thing, that R0, R1, R2, okay, the means of this function of operation, that is the R0, R1 plus R2. अगर R1 और R2 में जो वैल्यू है उसको ऐड करो और उनको स्टोर कहाँ पे करना है, एक डिफरेंट टाइप के रजिस्टर में, दैट इज द R0. ओके, देखो अगर मुझे R0 में ही सेव करना है और R0 के ही में दो वैल्यू है, दो वैल्यू मैंने R0 में 1 स्टोर कर रखा है और मुझे स्टोर करना है R0 में ही आउटपुट को स्टोर करना है, देन अगेन यू विल यूज द R0, R0, R0. ओके, द मीन्स ऑफ दैट that is the R0 is storing the value of R0 plus R0, that is 1 plus 1, again you will store the value 2 in the R0 like this. So this type of thing is TRIDEC operation. Always you will use the 3 registers. Okay, so TRIDEC means always you will use the 3 register to store this thing. दो आपके एक इनपुट हो जाएंगे और ऑलवेज यू विल यूज द थर्ड रजिस्टर टू स्टोर द वैल्यू. ये नॉर्मल आप औरों में भी करते हो, बट यहाँ पे स्पेशली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप का एक रजिस्टर ले लेते हैं, देन यू विल स्टोर द आउटपुट इन दैट रजिस्टर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इज द ट्राइडेक ऑपरेशन. इज इट ओके? हेलो, यस ओके. सो ट्राइडेक ऑपरेशन एक वर्ड नया मिला कि वी आर यूजिंग इन द ARM प्रोसेसर, वी आर यूजिंग द ट्राइडेक ऑपरेशंस. ओके, तो ये कहानी यहाँ तक समझ आई. अच्छा, एक नई चीज और आपको दिख रही होगी. Here you are seeing that thing also, that is the MAC. What is the means of this MAC? MAC means that is the multiplied and accumulation. MAC means MAC आप लोग नॉर्मल बोल रहे हो, that is the multiply and accumulate. ये कहाँ यूज होता है? इफ यू आर यूजिंग द लार्ज नंबर टू मल्टीप्लाई. लार्ज नंबर मीन्स इफ यू आर टेकिंग द 64 बिट्स नंबर टू मल्टीप्लाई, देन हाउ कैन बी मल्टीप्लाई दिस थिंग? नॉर्मल ALU वर्क कर सकता था, बट फॉर द परफॉर्मेंस बेसिस वी आर यूजिंग द मल्टीप्लाई एंड द एक्यूमुलेटर. और देखो नॉर्मल आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसका 25 का 1 2 से, तो आप लोग कैसे करते हो? दिस इज चलो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ आसानी के लिए. तो 0 and 4 मल्टीप्लाई 0 and 2. ओके, दिस इज क्रॉस, सो द आंसर इज दिस. You are doing this thing in the multiplication. Okay, so this is the multiplier. This is the multiplier. This is the output, you can say, or this is the multiplicand, and this is the output, you can say, or multiplant, इसका भी नाम कुछ होता है, then it is okay. So you can say the output. Okay, so here you can see that is the multiplier you have, the multiplicand you have, and the output you have. So what you are doing, एक रजिस्टर में मैं वैल्यू ये रख देता हूँ, एक रजिस्टर में ये वैल्यू रख दी, दूसरे रजिस्टर में ये वैल्यू रख दी, थर्ड रजिस्टर आई कैन यूज फॉर स्टोरिंग द आउटपुट. बीच में ये जो हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड अबाउट द आउटपुट ओनली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड द पार्शियल थिंग. मीन्स पार्शियली आउटपुट क्या आ रहा है और वो किस तरीके से. देखो मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या किया, ऐड किया. तो व्हाट यू कैन सी, that is the multiplicand and multiplier you have, and after that you can accumulate the answer. Accumulate the answer, and after that you have the output. So you can see here you have two type of register. First you are getting the value from here, second you are getting the value from here. So one is the multiplier, second is the multiplicand, and after that in the third register again you are accumulate का मतलब देखो, अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में अगर कोई वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया कि इस 0 से, कि मैं 0 से डिफाइन कर देता हूँ और इसमें अपडेट करता जाऊंगा. जैसे ही कोई मल्टीप्लाई हुआ कि x की वैल्यू a + b मैंने रख दी, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की, इनिशियलाइज कर दिया 0 से,
आफ्टर दैट जो भी आपकी a प्लस बी की वैल्यू हो वो इसमें एक्यूमुलेट होती जाए। अगर इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 आई तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर 2 प्लस 3 आ गई तो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्यूमुलेट होती जाए। सो दैट थिंग आई एम डूइंग। सो फर्स्ट आई एम डूइंग द आई हैव द मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट एंड वी आर डूइंग द accumulation, and after that I am getting the output, and this output is coming output is storing in the third type of register. So I am taking R1 R2 and after the accumulation I am adding, means storing the third type of register. Okay, so the Mac doing this thing multiply and accumulator. यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं बहुत बड़ा कोई नंबर ले लूंगा सो उतने रजिस्टर आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए चाहिए। अगर एक्यूमुलेशन को भी आप लोग स्टोर करते हो तो उतने रजिस्टर मैं कहाँ से लेके आऊंगा? मेरे पास तो अवेलेबल 16 रजिस्टर है, और मेरे अगर 32 बिट का भी अगर मल्टीप्लाई आ गया तो मुझे बहुत सारे रजिस्टर चाहिए। तो इसलिए मैं डिफरेंट टाइप का मैक एक लगा लेता हूँ और उससे मैं स्टोर करता रहता हूँ। तो ALU एंड MAC यूजिंग द यूजिंग द एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपका हो रहा है इस टाइप में, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर टू यू? ये पार्ट आपको एग्जीक्यूशन वाला समझ में आया? लास्ट पार्ट आपका ये छोटा सा रह गया है, इसको भी मैं समझा दूंगा, अभी टाइम ओवर हो गया है। द नेक्स्ट क्लास में आई विल कवर अप दिस पार्ट. So I think what is the means of fetching, how can it is doing, डिकोडर क्या कर रहा है, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये आपको समझ आया होगा। स्टोरी समझ में आई थोड़ा सा कि ये कैसे वर्क कर रहा है? इज इट ओके? यस सर। अगर समझ में नहीं भी आया तो एक बार इसको मैं लोड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा 5-10 मिनट हम लोग इस पर लेंगे अगेन, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो मैं लास्ट का आपका ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको समझा दूंगा, और बैरल शिफ्टर, ये दो चीजें बची हुई है, बैरल शिफ्टर भी बचा हुआ है। तो बैरल शिफ्टर और इसको भी समझाऊंगा, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया है कि कोई भी प्रोसेसर हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट इज फैचिंग, सेकंड इज डिकोडिंग, थर्ड इज एग्जीक्यूशन। आपके इसी पार्ट में सब चीजें कवर हो जाती हैं। डायग्राम आपका कितना भी बड़ा हो, कितना भी दिखने में मतलब खराब लग रहा हो, वो इसी के बीच में काम करना स्टार्ट करता है। इज इट ओके? आप 8086 को भी मैंने इसी तरीके पढ़ाया है आपको, 3 पार्ट में डिवाइड करके। 8085 को भी इसी तरीके से पढ़ाया था, अलग अलग पार्ट को समझाया था कि किस तरीके से वर्किंग है। इज इट ओके? ठीक है बेटा, देन आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा शेयर वाले बंद करता हूँ। ओके।